On today's episode of Stories of Strength, I have with me a remarkable young lady who's breaking stereotypes in Pakistan. She is country's first solo traveler to embark on adventures on a CD70 bike. With her fearless spirit and determination, she's inspiring other people to pursue their passions regardless of their gender. Join us as we dive into her journey of strength. Hi, Barita. Hello. How are you? Um, am I not looking fine? No, you're looking fine. I'm great. So, अभी आप मुल्तान से आ रहे हो? जी, बिल्कुल मुल्तान थोड़ा थोड़ा टैन भी हो गया मुझे। So, were you on the bike? On bike, always. Wow. So, is it getting cold in Pakistan now, or it's still a little hot? Yeah, nights are cold and mornings बाकी बीच में mid हो जाता है, but in Lahore there is smoke. So So you have to be very, very careful nowadays, right? With the yeah, smog and the fog mixed together, वो तो एक और ही कोई बन जाता है उसका. too much bacteria to inhale, I basically. know. So do you wear mask and everything, Yeah, protection? I do. Yeah. Okay. So let's start. Barira, I have a question for you. I know, like, I also learned how to ride a cycle when I was young. When did you learn how to ride a bike, like a CD70 bike? First of all, I started with bicycle and I learned bicycle right before, I guess, 3 to 4 months before the bike. Like Oh, not wow, in a, really? So you didn't learn it as a child? You didn't? Okay. no. That is impressive. Yeah, I learned bicycle for bike basically. So I learned bicycle in 2020 in COVID, and then I started riding a bike by myself. I was basically asking YouTube to tell me how to ride a bike, how to shift the gear, and etc. etc. और वो मुझे सब कुछ बता रहा था. And then my Abba saw me once looking on the motorcycle, and he was like, what are you doing, you will fall. And I'm like, no, I won't. But ultimately उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, ये काम मत करो. So yeah, that's my there was my journey began. And उसके बाद मैं नहीं रुकी. That is amazing. And then your parents were okay with it. That's like a really good thing that I think other parents can also learn from your parents कि अगर आपके बच्चे का किसी चीज में दिल है और वो करना चाहते हैं और उसको अपनी सेफ्टी और वो सारा चीजें they're taking in mind तो you should let them do it, right? Exactly. And one more thing very important, I say to children and people, girls, boys like me, that you have to prove yourself as well. Like I have proved myself, I have taken my father in trust of me that I can do it. और जब मैंने फर्स्ट ट्रैवल किया था तब भी मैं बहुत आराम से लेके गई और सही सलामत वापस भी आई. और उसके बाद मैं इंडिपेंडेंट हो गई, बाइक पे आती थी जाती थी कॉलेज, जॉब पर, स्कूल एंड एवरीवेयर. तो इस तरह से बहुत ज़्यादा उनको एतमाद हो गया कि हाँ, ये कर सकती है. अगर उन्हें ये चीज़ें सारी नज़र ही ना आ रही होती तो मे बी ही वुड नॉट बी एबल टू सेंड मी एनीवेयर. सो इसमें मुझे लगता है कि बच्चों का भी थोड़ा-सा हाथ है कि वो अपने को प्रूव करें दैट दे That is कैन. true. That is true. If you have to gain the trust of your parents, Yeah. it's very important. And once you have that, I'm sure parents can also. Acha, so what was your first journey? Not the solo one, but the first one, the long distance. You're from Lahore, right? Yeah. Which one was your first long distance? And was it in a group or you just went solo? On bike, Mm-hmm. it was in group in 2021, right after 6 months of learning bike. Wow. I went to Kashmir with Discover Pakistan with 20 female bikers. They were all females. Wow. I didn't know that Pakistan has such a big community of women that go on bikes. We have a group of 600 Lahori girls, just Lahori. So 20 girls were selected for that.
and I was lucky one to be, because I was a newbie, right? Mm-hmm. But I was lucky one to get selected for that. And on CD70 they were not recommending CD70. I was passionate enough, confident enough that I could do that, and I did it. मैं अकेली ही थी जो 70 सीसी पे थी, बाकी कोई भी नहीं था। तब मुझे थोड़ा सा एतमाद आया कि 70 जा सकती है। Because I know और that, because I told you my husband is into bikes as well. तो मुझे पता है कि touring bikes versus the regular bike, there's a difference, because आप नहीं लेके जा सकते पर हाँ जी long distances पे, but you have done it. Wow. So when did you decide कि अब मैं groups के साथ नहीं जाना चाहती और अब मैं I just want to go solo? right after my first group travel. And what was that? 600 औरतों ने पागल कर दिया। Yes. it was it was like there was no freedom. There was no such, like sense of liberty. Like you can't do your thing. I basically travel, I pick a spot, I paint there, right? I have my portable easel and chota sa canvas with me, and I paint there. But I I couldn't wanted do to. that there because they were from a different mindset. I go off roads and they are not from that. We can't hike. We are breathing, बहुत heavy breathing हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है. So I thought, okay, so group traveling is not for me. I have to try solo traveling. Acha. So were your parents okay with you going solo? They They weren't. were okay with initially they were okay with group travel. वो भी बहुत मुश्किल से माने थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि बिल्कुल 6 महीने हुए हैं, हाउ कुड यू गो. बट Hmm. क्योंकि ज्यादा लोग थे, डिस्कवर पाकिस्तान था, सिक्योरिटी भी थी, तो दे अग्रीड समहाउ. बट मुझे मेरे इरादे पता थे कि मैंने अब सोलो ट्रैवल करना है, उनको नहीं पता थे. एंड व्हेन आई started traveling, I didn't tell them at first place that I'm going solo. I told them that I am going with the group, but I was solo. And they were like, okay, but like वो उस वक्त भी नहीं मान रहे थे. बट देन दे सेड कि अच्छा ठीक है, मतलब ग्रुप पे मान गए. पर अगर मैंने सोलो कब चाहती वो कभी भी ना जाने देते. एंड देन आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने सोलो ही ट्रैवल्स अपने किए. So which one? Where did you go for your first solo travel? टू मुशपुरी टॉप. Acha. So how was that? How do you prepare for your journey? Like, do you have certain like that you sleep on time before that? You eat certain things, or what are the stuff that you carry with you? स्लीपिंग ऑन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. मैं सो जाती हूँ, मैं सुबह सुबह निकलती हूँ लाइक 4 बजे. और जस्ट गिव मी अ व्हाइल प्लीज. Of course. हेलो. जी. या. हाँ जी, आप सो क्या बता रहे थे? या, You were वेयर telling वर me वी. about how you prepare for your journey. फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है. मैं बिल्कुल 4 बजे उठती हूँ सुबह. और 4 बजे बेसिकली उठती नहीं हूँ, 3 बजे उठती हूँ, और 4 बजे मुझे निकलना होता है. और मैं दिन दिन में ही ट्रैवल करती हूँ. एंड व्हेनेवर आई फील लाइक कि अच्छा अब रात हो रही है, या फिर मैं कहीं सेफ स्पॉट पे नहीं पहुंच पाऊंगी, तो वहां पर भी मैं स्टे कर लेती हूँ. और उसके अलावा कुछ चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि बाइक की मेंटेनेंस लाजमी करवानी है जब आपने निकलना है. उसके अलावा अपने सेफ्टी गियर्स आपके पास होने चाहिए. I keep a few of like safety gears with me, tools वगैरह. और बाइक के टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको बाइक का छोटा मोटा काम भी आना चाहिए, जैसे कि मुझे पंक्चर लगाना आता है. क्योंकि मेरी पंक्चर एक दफा बाइक हो गई थी मरी हाईवे पर, एंड देयर वाज नो वन टू हेल्प मी. उस वक्त मेरी थोड़ी सी अक्लमंदी ये काम आई थी कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो सेव की हुई थी, हाउ टू फिक्स द पंक्चर. तो मैंने उधर से देख के पंक्चर लगा लिया था. सो उसके बाद मैंने सीखा बाकायदा पंक्चर कि किस तरह से लगता है. सो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो.
So हाँ, मेरा वही next question था आपसे कि आपने, so you've learned how to maintain your bike, and that is an important key thing when you're traveling solo, to be able to know a little bit about the oil change and Yes. this and that, like Yes. अगर chain को कुछ हो जाए या brakes को कुछ हो जाए, so you should be able to do it. So you Yeah. know that. Yeah, I keep extra tube, I keep plugs, I keep chain locks, I keep छोटे मोटे जो कसने के लिए टूल्स यूज होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, आई आई फॉरगॉट, उनका एक नाम होता है, अच्छा. वो होता है। और साथ में आई कीप माय सेफ्टी गियर। तो वो सारी चीजें मिलाकर And एक what पूरा is your पैकेज बनता safety gear? What are the gears? What is the safety gear for the biker? है। से वेरी इंपॉर्टेंट हेलमेट, एंड देन जिसको बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, नी एंड एल्बो कैप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हम जब लगते हैं हमारे हाईएस्ट पॉइंट सबसे ज्यादा रोड पे टच होते हैं, सो Mm-hmm. वो बहुत ज्यादा छिल जाते हैं। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं योर एल्बो एंड नी कैप्स, और वो उसके लिए जैकेट मिलती है, एक सेफ्टी जैकेट होती है, वो यू कैन वेयर, एंड द बाइकर्स पैंट्स होती हैं वो, एंड द हेलमेट। these three are like safety gears. एंड फॉर फीमेल खासतौर पे सेफ्टी गियर मैं एक टेजर और डैगर, ये दो चीजें रिकमेंड करती हूँ कि लाजमी होनी Mm-hmm. चाहिए। So that was my next question. There, it's said about Pakistan that it's not safe for women, and we do hear a lot of stories every day. So, what was your experience like as a solo traveler? पाकिस्तान इज नॉट दैट मच डेंजरस, एंड पाकिस्तान के बारे में बेसिकली ज्यादा बात है रादर देन के ज्यादा एक्शन हो, बात ज्यादा है उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इतना ज्यादा डिप्लोमेटिक नहीं चलता इसलिए, और एक उसका पर्सोना बन चुका है दुनिया के सामने, टेररिस्ट स्टेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। But I am the example. I tell everyone that Pakistan is safest, and literally, you will not imagine. Because I, as a traveler, I'm a traveler and travel a lot. इतने सारे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स, दे से themselves कि पाकिस्तान इज अ सेफ कंट्री। और इवन कुछ ऐसी कंट्री थी जिसके बारे में बहुत ज्यादा मीडिया पे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, बट वहां पे स्ट्रीट क्राइम ज्यादा है, वहां के लोगों ने बताया यहाँ पे आकर मुझे, मतलब लाइक व्हेन यू टॉक टू देम Yeah, when दे you टेल यू personally थिंग्स। meet them there. Yes, they tell you these things, but they say your country is safe. Like पाकिस्तान के बारे में I don't know, वो बोलते हैं ऐसा कि we don't know कि क्यों इस तरह की बात की जाती है। This is very safe country। आपको पता है कि people respect a lot। मुझे इतनी इज्जत मिली है ना, मैं एज अ सोलो फीमेल जब भी गई हूँ, हमेशा डिस्टेंस पे रह के मुझसे बात की जाती है, और मुझसे पूछा जाता है आपने कुछ खाना है पीना है, घर बुला लेते हैं। उनकी औरतें मेरे इर्द गिर्द झुमकटा गा के अपने ट्रेडिशनल डांस करती हैं, अपने गीत गाती हैं। लाइक ऑफ गॉड, पाकिस्तान इज सो रिच। It is so nice to hear all these things. अच्छा मुझे बताओ, now I want to know about your, जब आप 40 days के लिए, you were away for a month from your home. You started Yeah. your journey from Lahore and you ended up near the border of China. Yeah. Wow. So how was that? How was your experience? Were you like really excited the It night was before? Were you thrilled? Were you nervous that you were going for so long? it was so dreamy। it was life changing event for me। मैं उसको कहूंगी कि उसने ना, एक तो मेरा वो ख्वाब था बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, तो मेरा दिल में यही था कि मैंने लाहौर से पंजाब पास जाना है, और बस एक था कि मुझे जाना है और मुझे करना है, ये करना ही करना है, और मैंने अकेले जाना है। और जब मैं निकली हूँ ना, बिल्कुल भी मैं नर्वस नहीं थी, क्योंकि मुझे एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि यार, उफ, देयर इज समथिंग आई एम गोना डू, आई एम गोना अचीव। बट जब मैं घर से निकली ना, आई सॉ सम टीयर्स इन माय फादर्स आई, and then I got so emotional कि oh okay yes, now I am also feeling that emotion कि अच्छा मेरी बेटी आराम से पहुंच जाए, सुकून से पहुंच जाए। तो फिर जब मैं निकली हूँ, एंड देन आई वाज ऑन द रोड, आई वाज फ्री, आई वाज लिबरेटेड, आई वाज फीलिंग कि अच्छा मैं कुछ अचीव करने जा रही हूँ।
एंड देन मैं डायरेक्ट वन गो में लाहौर से बटाकुंडी गई थी, नारान, और यू कितने नो। कितने आवर्स और मुझे आपको मैं सुबह पहुंचने में? निकली थी। कितने आवर्स लगे थे लाहौर से सॉरी, नारान पहुंचने? मैं यही बताने लगी। जी, मैं निकली थी 5 बजे, और बीच में मैंने सिर्फ एक चाय का स्टे किया था, और मैं 2:30 बजे बटाकुंडी में थी। सो आवर्स बनते हैं से 9 आवर्स। So 9 hours straight you travel to Naran. यस। अच्छा, and then आपने और नारायण में जाके यस, did you stay there and rested and then अगला पार्ट आपने स्टार्ट किया कि उसी दिन आपने you decided to go? नो 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 नो, बिकॉज आगे था चिल्लास, एंड चिल्लास इज अ वेरी ड्राई पैच। वहां की भी एक बात है कि वहां पे गुंडागर्दी थोड़ी सी होती है, और वहां पे रॉबरी वगैरह का भी होता है, तो मैनी टूरिस्ट अवॉइड स्टेइंग देयर ना। सो आई डिडंट। मैंने उस दिन स्टे किया, थोड़ा सा बटाकुंडी वगैरह मैंने एक्सप्लोर किया, इधर उधर घूमी। और बारिश बहुत तेज हो रही थी, बहुत खूबसूरत मौसम था, और सिग्नल्स आ नहीं रहे थे, दूर दुनिया से आजाद मजे में। आई वाज अलोन देयर। और उसके बाद हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इधर बोलूंगी कि मैंने स्टे जिधर किया था, पहले मुझे एक होटल वाला मिला, उसने मुझे बोला कि आप फ्री रह लें इधर, नो प्रॉब्लम एट ऑल ना। तो इट वाज नॉट नॉट हॉस्पिटैलिटी नहीं थी, इट वाज टोटली समथिंग एल्स। मतलब मुझे उसको देख के लग रहा था कि वो क्यों मुझे ये ऑफर कर रहा है ना। मुझे मुझे एक बहुत नेगेटिव फीलिंग आई। मेरी इनेट सेंस ने मुझे कहा कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। मैंने उसको कहा कि आप मुझसे पैसे ले लें, लेकिन मुझे ना मेरी मर्जी का कमरा चाहिए, बट ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव मी द रूम ऑफ माई चॉइस। मैंने उधर से निकल गई। तो फिर मैं एक ऐसे होटल में गई जहां पे मैंने देखा पहले कि यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, मेरे साथ किसका रूम है, ये सारी चीजें मैंने देखी। तो एज सोलो फीमेल ये चीजें भी आपको बहुत ज्यादा देखनी पड़ती हैं कि आप स्टे किधर कर रहे हो, आपने किधर रहना है। सो हम्म। but always always feel your innate senses, और हमेशा बिलीव उसको करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं बटाकुंडी से जब निकली थी आगे टूवर्ड्स हुंजा डायरेक्ट, तो जब मैं बाबू सर पे पहुंची, बाबू सर पे आई वाज शाउटिंग इतना ऊंचा। वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट है इस ट्रैवल का, इतना ऊंचा मैं चीख रही थी, क्योंकि मुझे सब ये बात बोलते थे कि तुम में आई एम 5'1", तो मुझे सब कह रहे होते हैं कि यार तुम छोटी सी हो, तुम नहीं जा सकती। ये मुझे बहुत सुनने को मिला है, बहुत ज्यादा। और उसके बाद मुझे सुनने को मिला है 70 नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और मैं हमेशा कहती होती थी इट्स अबाउट द राइडर नॉट द बाइक। तो लेकिन कोई मानता नहीं था इस बात को। जब मुझे सब कहते थे तुम बाबू सर पे चढ़ा लोगी ना तो हर जगह जाएगी, और मैं बाबू सर पे जब ले गया, आई वाज ऑन द टॉप एंड आई वाज शाउटिंग, ओ वाओ दिस इज बाबू सर टॉप, ब्ला ब्ला। और उधर से आर्मी के पर्सन आए हैं, 2 मिलिट्री पर्सन, भागे भागे ना। आई वाज लाइक कि अब कहेंगे कि क्यों चीखे मार रही हो तुम, दिस ब्ला ब्ला। एंड दे वर लाइक वी सॉ first time solo female on CD70 on Babusar Top. That must be And such a that was, beautiful, like feeling कि oh, ये I was literally crying. I mean, I'm feeling emotional. I was crying at that time that, oh my God, okay, this is what I wanted to do. कि मतलब हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सभी चलें, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। एंड दैट वाज द मोटो एक्चुअली, जमशेद का गाना, कि यार वही करना है, बस अलग नजर आना है। तो बस हम्म। यही हुआ, अलग नजर आई, लोगों ने अप्रिशिएट किया, फिर हुंजा पहुंच गई डायरेक्टली पास की रोड पर। तो इसलिए कुडंट गो स्ट्रेट टू खुंजराब पास, मुझे 40 days लग गए खुंजराब पास जाते हुए। एंड देन आई एक्सप्लोर्ड हुंजा अ लॉट ऑफ ट्रैकिंग्स उसकी की मैंने, एंड सॉ मैनी मैनी अमेजिंग ब्यूटीफुल ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप्स। Sounds like a perfect trip और इतना मतलब liberating and fun and getting to explore your own country, and Pakistan is a beautiful country. हाँ, और लोग यस, इतने जेनरस, इतने लविंग एंड काइंड। बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं, बट होते मोस्ट हैं। पार्ट ऑफ पाकिस्तान पीपल आर रियली नाइस, काइंड एंड जेनरस, सो आई एम श्योर यू एक्सपीरियंस्ड ऑल ऑफ दैट ड्यूरिंग योर जर्नी टू या खंजरात पास। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप डू यू एवर प्लान ऑन डूइंग इंटरनेशनली, गोइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान एज वेल? यस, नॉट रियली। पहले तो मैंने नहीं किया, बिकॉज आई लव माई कंट्री। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू प्रोजेक्ट माई कंट्री इन अ वेरी पॉजिटिव वे टू द वर्ल्ड।
मेरा यही था. But now I want to tell people that okay, we as terrorists as a tag of, you know, people who have a lot of terror in the world. So we are not that. So I want to project that to the world as well. I want to go there, I want to see their communities and tell them that we are not the people you think of us. So I tried, but visa issues, पाकिस्तान के थोड़े से visa issues हो जाते हैं जिसकी वजह से, you know. So what I have planned now is to go to Turkey because उनके कुछ visas, you know, आसान हैं. और the route from Iran, like यहाँ से from Iran and then Afghanistan, Afghanistan के बाद towards Azerbaijan, Georgia and Turkey. So this is my route plan, That inshallah. sounds like a really fun trip. Acha. Um, can you talk about, you just recently got the international recognition and you were in Baku. How was that experience? Amazing. I have never expected it. To be very honest, whenever people ask me, na, who is your competitor or तुम किसको देखती हो, I truly have not any competitor because आप compete उससे करते हैं जो आप जैसा हो. आप जैसा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में. आप बिल्कुल अकेले हैं, आपकी आइडेंटिटी फर्क है. I always inspire from people and मुझे जिसने इंस्पायर किया in my life is my own dreams. सबसे पहले तो मुझे उन्होंने इंस्पायर किया था कि I have to go out of my home and see the world first. And then there is a man, Pakistani man, Kamran, on bike. He's doing world travel on bicycle. He's an amazing man. I love him so much. Uska काम, उसका जज्बा, उसका courage is just so lovely. और मुझे इन्होंने बहुत इंस्पायर किया था. तो फिर मैंने कहा था हाँ हाँ हाँ, अब मैं भी जाऊंगी. तो यही चीज थी, जब मैं बाकू में गई हूँ तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मुझे कोई इस तरह का अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई फर्स्ट बनना चाहती हूँ या मुझे कुछ तमगे चाहिए. मुझे हमेशा था कि मैंने कुछ करना है फॉर माय नेशन, एंड मैंने जो एक परसोना है ना पाकिस्तान का, इस पर काम करना है किसी भी वे में. और मुझे नहीं पता था कि वो ये वे होगा. आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग फॉर माई सेल्फ एंड टू शो पीपल दैट दिस इज माई कंट्री एंड ब्यूटीफुल कंट्री. बट वो एकदम से बूस्ट बहुत ज्यादा मिला इसको कि अच्छा, एक लड़की अकेली गई हुई है और लाहौर से गुजरात गई हुई है, और इसकी वजह से मुझे गवर्नर हाउस में बुलाया फॉर अ टॉक. एंड आई वाज लाइक कि ओके कि क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था. कभी इस रेस में नहीं थी मैं. तो खैर आई वाज नर्वस एट दैट टाइम. मैं गई, मैंने उनसे बात वगैरह की एंड दे वर वेरी गुड पीपल, गवर्नर साहब हमारे जो हैं. और उधर बात हुई है सबसे. ऑक्सफोर्ड की इल्यूमिनाई आई हुई थी एंड आई वाज लाइक कि मैं इनके सामने आई एम प्रेजेंटिंग माय कंट्री. दैट वाज सो ओवरवेलमिंग. वहां से मेरी नॉमिनेशन गई टू बाकू. सो दैट वाज इन ट्रैवलिंग कैटेगरी. उसमें काफी सारे लोग थे फॉर अवार्ड नॉमिनीज, लेकिन पाकिस्तान सेलेक्टेड. अल्हम्दुलिल्लाह. दैट अवार्ड वाज फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली फॉर मी इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी. लेकिन मैं उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी. इवन जब मैं वो अवार्ड ले भी रही थी तब भी आई वाज सो डिल्यूजनल कि व्हाट इज हैपनिंग हियर. नहीं, आई एम श्योर आप और भी बहुत ट्रैवल करोगे और बहुत से इंशाल्लाह. अच्छे अवार्ड्स लेकर आओगे पाकिस्तान के लिए और अपने लिए. इंशाल्लाह. सो बिफोर वी एंड, आप मुझे क्या कहना चाहोगे अपने जैसी और लड़कियों को जो सोलो ट्रैवल करना चाहती हैं या ग्रुप में ट्रैवल करना चाहती हैं, बट दे आर स्केयर्ड एंड दे डोंट नो हाउ टू टेक द फर्स्ट स्टेप? तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए? अब मैं यही कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बहादुर हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत एडवेंचरस हूँ. मैं भी एक आम सी लड़की, मेरे पास एक आम सी 70 सीसी बाइक है जिसके ऊपर मैं ट्रैवल करती हूँ. मेरे अंदर सिर्फ एक जज्बा है, मेरे अंदर सिर्फ कुछ करने की लगन है बस. मुझे भी पता है कि वर्ल्ड में बहुत से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा क्योंकि मेरे इरादे बहुत पक्के हैं. और अगर कुछ हो भी जाएगा तो क्या हो जाएगा. और अगर कुछ भी होता है तो वो मंजूर खुदा होता है. मुझे ये बहुत ज्यादा बिलीव है कि अगर आपसे खुदा ने कुछ लेना है तो वो आपसे ले लेता है. तो फिर आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि खुदा आपको उस काबिल बनाए कि आपसे ले वो चीज.
तो मैं बस यही कहूंगी सबको कि बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट, कि यू कैन डू इट एंड हैव पैशन इन लाइफ टू डू दैट। कि अगर हम किसी के कहने पर रुक जाएं तो वो हमारा पैशन नहीं है। अगर हम किसी के कहने पर अपना एक कदम पीछे कर लें तो इसका मतलब कि उसका कहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन योर ड्रीम। तो ड्रीम तो कोई भी पूरा आपका नहीं करेगा सिवाय आपके। तो आपने ही कदम बढ़ाना है और आपने ही आगे जाना है। दुनिया को आपने ही बताना है कि आप क्या चीज है और आप बहुत बड़ी चीज है। That was such a beautiful thought. Thank you so much, Parira, for थैंक doing यू। this. I'm sure जो भी सुन रहा है सब बहुत इंस्पायर होंगे आपकी जर्नी से. Thank you so much. थैंक यू। अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज।